بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ ہمارا دین بحیثیت مسلمان، ہمارا دین عربی زبان میں ہے۔ عربی سمجھے بغیر دین کما حق کو سمجھنا ناممکن ہے۔ جیسے ہم دوسری زبانیں سیکھتے ہیں، زمانے کے تقاضوں کو دیکھتے ہیں، اپنی ضروریات کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ ہم دوسری زبانیں بھی سیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں کئی صحابہ کو دوسری زبانیں سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن عربی چونکہ ہماری دین کی زبان ہے اور دین کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، قرآن کی زبان ہے، شریعت کی زبان ہے۔ اسی طرح عربی بول چال جو حضرات عرب ممالک میں کام کرتے ہیں، جہاں پہ ہم دوسری زبانیں سیکھتے ہیں، آئلس کرتے ہیں، اور یورپ کے ممالک میں انہوں نے بغیر آئلس کے ویزے پہ پابندی لگائی ہے کہ آئلس کیے بغیر کوئی بھی اسٹوڈنٹ امریکہ، یو کے، کینیڈا میں نہیں آ سکتا، ان کے بغیر یہ سرٹیفکیٹ، یہ سند ہونی چاہیے۔ ایسے ہی عرب میں بھی اگر آپ کو اچھی طرح عربی آتی ہے، آپ آفس میں کام کرتے ہیں اور عربی آپ بول سکتے ہیں، تو آپ ان لوگوں سے کئی زیادہ کام کر سکتے ہیں، زیادہ تعلقات بنا سکتے ہیں، زیادہ افہام و تفہیم کر سکتے ہیں جن کو عربی نہیں آتی۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے عربی لینگویج کورس کا آغاز کیا، اور انشاءاللہ اس سے کافی استفادہ ہوگا، بشرطیکہ کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں، اور جو کام آپ کو یہاں پہ ملے آپ اس کو یکسوئی کے ساتھ کریں۔ آپ کو یہاں سے ہوم ورک ملے گا اور یکسوئی سے کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اب ہم پہلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان کے شروع میں، آغاز میں جتنے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اسم اشارہ سکھاتے ہیں۔ اسم اشارہ سکھانے میں ایک فائدہ تو یہ بھی ہے کہ تقریباً ہم کسی بھی زبان کی ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ یہ فلاں چیز ہے، یہ قلم ہے، یہ دروازہ ہے، یہ گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ بستر ہے، یہ الماری ہے، یہ لائٹ ہے، آسمان، یہ زمین ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں سے ہم کسی زبان کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہاں سے ابتدا کرنا آسان بھی ہے، اور چونکہ یہ ابتدائی چیز ہے، اگر آپ کو یہ چیز نہیں آتی تو گویا یہ بنیاد ہے، اس پہ آپ عمارت کھڑی نہیں کر سکتے۔ تو پہلا لیکچر ہمارا اسم اشارہ کے متعلق ہے۔ اچھا، اس میں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ساتھ ساتھ انگلش کے جو ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، وہ بھی میں نے لکھی ہیں۔ بعض ہمارے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں، کالج، یونیورسٹی، اسکولوں سے آئے ہوتے ہیں، چونکہ ان کی اردو اور عربی سے زیادہ مناسبت نہیں ہوتی، یہی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ عربی، لیکن چونکہ انہوں نے یہ اصطلاحات انگلش میں پڑھی ہوتی ہیں، تو ساتھ میں نے کوشش کی کہ انگلش میں بھی جو ٹرمز، اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں وہ بھی یہاں پہ میں نے درج کی ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو سب سے پہلا سبق ہمارا اسم اشارہ کے متعلق ہے۔ اسم اشارہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیمانسٹریٹیو ایڈجیکٹیو۔ جو ڈیمانسٹریٹیو ایڈجیکٹیو ہم انگلش میں بولتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دس، دیٹ، دوز، دیز، یہ ڈیمانسٹریٹیو ایڈجیکٹیو ہوتے ہیں۔ اسم اشارہ اس کو کہتے ہیں انگلش عربی میں۔ لیکن ایک بات یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اسم اشارہ اردو، انگلش کے بنسبت عربی میں تھوڑا سا تفصیلی ہے۔ اس سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے کہ زیادہ تفصیلی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اردو انگلش میں زیادہ تفصیلی ہیں، عربی میں بہت مختصر ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں عربی میں زیادہ تفصیلی ہیں، انگلش اردو میں بڑی مختصر چیزیں ہیں وہ۔ تو بہرحال آپ نے اس کو دیکھنا ہے، کچھ تفصیلی ہیں اس سے۔ کیوں؟ عربی، اردو اور انگلش میں ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ تثنیہ کا صیغہ نہیں ہوتا، ڈول کا صیغہ نہیں ہوتا، مطلب یا تو سنگولر ہوتا ہے، ایک سے جب بڑھ جائے، ایک سے زیادہ ہو جائے تو فوراً پلورل شروع ہو جاتا ہے۔
इस पे इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन अरबी में सिंगुलर, डुअल, तस्निया 2 और प्लूरल 3 वर्ड्स होते हैं अलग अलग। इससे भी आपको अंदाजा हुआ कि इसमें इशारा के हवाले से अरबी, इंग्लिश, उर्दू के बनिस्बत तफसीली है। तो अब हम शुरू करते हैं। मैंने ये 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा, 2 हिस्से, ये दूसरा हिस्सा है। कुछ इसमें इशारा अरबी में ऐसे होते हैं, हर ज़बान में होते हैं, जो करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं, नियर के लिए इस्तेमाल होते हैं। करीब किसी चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं करीब, तो उसके लिए इसमें इशारा करीब के। अच्छा, फिर करीब में 2 कैटेगरीज है, एक मैस्कुलिन के लिए है, मुज़क्कर के लिए है। अगर हम किसी मुज़क्कर चीज़ को पुकारते हैं, आदमी खड़ा है, कोई मुज़क्कर चीज़ है, तो उसको जब हम पुकारते हैं तो हम मैस्कुलिन इसमें इशारा से पुकारेंगे। अगर हम किसी मुअन्नस चीज़ को पुकारेंगे, फेमिनिन चीज़ को पुकारेंगे, खातून खड़ी है, तो हम उसको मुअन्नस का जो इसमें इशारा होगा, फेमिनिन का जो इसमें इशारा होगा, उससे पुकारेंगे। तो सबसे पहले हमारा करीब जो इसमें इशारा है, नियर, जो करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब करीब के इसमें इशारा में 2 किस्म आएंगी, 2 किस्में, एक मुज़क्कर, एक मुअन्नस। मुज़क्कर के कौन से इसमें इशारा है? हाजा। जब आप किसी एक चीज को की तरफ इशारा करके पुकारते हैं कि ये एक कलम है, ये एक कलम है, हादा कलमुन, ये एक है। अगर ये कलम 2 हो जाते हैं, ये 2 कलम हैं, तो उर्दू इंग्लिश में हम फौरन प्लूरल पे आ जाते हैं, दरमियान में नहीं है कुछ। लेकिन अरबी में 2 के लिए अलग वर्ड है, तो हम क्या कहेंगे? हाज़ानी कलमानी, जिसको अरबी में तस्निया कहते हैं, इंग्लिश में डुअल कहते हैं, और उर्दू में 2 कहते हैं, डबल कहते हैं। अच्छा, अगर ज्यादा लोग हैं, जमा लोग हैं, आदमी बहुत सारे खड़े हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम क्या कहेंगे? हाउलाई रिजालुन, ये सारे के सारे आदमी हैं, ये बहुत सारे आदमी हैं। तो उसके लिए जमा और इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं। अच्छा, ये तो हमारे करीब के हो गए, जो कि मुज़क्कर के थे। अब हम करीब के ही हैं लेकिन मुअन्नस के। अगर एक खातून करीब में खड़ी है, आप कैसे कहेंगे कि ये एक खातून है, ये एक औरत है? तो उसके लिए हम कहेंगे हाज़िही इम्राअतुन, ये एक खातून है। अभी हम करीब के इसमें इशारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर 2 खवातीन हैं, ये 2 औरतें हैं, ये 2 खवातीन हैं, तो आप कहेंगे हातानी। साथ साथ मैं प्रोनाउंस भी कर रहा हूं, इस पे आपने बड़ा ध्यान देना है। प्रोनाउंसिएशन में हमसे गलती हो जाती है किसी भी जबान में। इंग्लिश आपको पता है इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंस करना, एक्सेंट, इसका ज्यादा मसला होता है। खासकर हम पाकिस्तानी इसमें मार खा जाते हैं। तो हातानी 2 खवातीन, हातानी इम्राअतानी, तस्निया और डोल हो गया। अब अगर आप आते हैं जमा पे कि बहुत सारी औरतें हैं करीब में, तो आप कहेंगे हाउलाई निसाउन, औरत की जमा निसाउन है, हाउलाई निसाउन। ये तो हो गई हमारे करीब की इसमें इशारा। अब हम आते हैं बईद, फॉर, जो हमसे दूर हैं, जिसके लिए इंग्लिश में दैट इस्तेमाल होता है, दैट, दूर। तो उसके लिए इसमें इशारा, इसमें भी 2 किस्म की होती हैं। कुछ जो दूर इसमें इशारा है, दूर चीजें हैं, जाहिर है वो सारे की सारी मुअन्नस तो नहीं होंगी। दूर एक आदमी भी हो सकता है, दूर एक खातून भी हो सकती है, तो दोनों हम, दूर एक गाय भी हो सकती है, मुअन्नस है। तो अब हम क्या कहेंगे? वो एक आदमी है, दैट इज, दूर एक आदमी है, तो हम कहेंगे ज़ालिका रजुलुन। अब दूर 2 आदमी भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। 2 आदमी खड़े हैं, हम कैसे कहेंगे? वो 2 आदमी हैं, तो हम कहेंगे ज़ानिका। साथ साथ प्रोनाउंस भी कर रहा हूं, इस पे ध्यान देना है। ज़ानिका, इसलिए मैंने एराब भी लगाए हैं, जबर जेर पेश, ताकि मसला ना हो बाद में। ज़ानिका रजुलानी। अब दूर एक भी हो सकता है आदमी, 2 हो सकते हैं, जमा भी हो सकते हैं। इंग्लिश उर्दू में फिर बता रहा हूं कि इंग्लिश उर्दू में 2 चीजें होती है, सिंगुलर और फिर फौरन प्लूरल। दरमियान में डुअल, तस्निया का सीगा नहीं होता, 2 का सीगा नहीं होता। अब हम आते हैं दूर, काफी ज्यादा आदमी है, तो हम कहेंगे उलाइका रिजालुन, जमा, प्लूरल। अच्छा, दूर
जैसे मुज़क्कर हो सकते हैं, मुअन्नस भी हो सकते हैं। वो एक खातून है तो हम कहेंगे तिल्का इम्राअतुन, तिल्का इम्राअतुन। अच्छा, दूर दो खातून खवातीन हैं, दो औरतें हैं, तो हम कहेंगे तानिका, तानिका तस्निया डोज, तानिका इम्राअतानी। अच्छा, दूर काफी ज्यादा खवातीन हैं, ज्यादा औरतें हैं, तो हम कहेंगे उलाइका निसाउन। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज गौर कर लें, ये जमा का सीगा, ये जो हम जमा इस्तेमाल कर रहे थे, प्लूरल प्लूरल प्लूरल, ये तब्दील नहीं होता। ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए एक है। आपने जितने भी हम ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, इसमें इशारा, इसमें सारे तब्दील हो गए। हाजा मुज़क्कर था, उसका मुअन्नस हाजी ही आ गया। ज़ालिका ये मैस्कुलिन था, इसका फेमिनिन तिलका आ गया। लेकिन जमा के अंदर, प्लूरल के अंदर हाउलाई प्लूरल, जैसे मुज़क्कर के लिए मुअन्नस के लिए भी हाउलाई है। इसी तरह उलाइका दूर के लिए, जैसे मुअन्नस के लिए उलाइका है, मुज़क्कर के लिए भी उलाइका है। जैसे मैस्कुलिन के लिए उलाइका है, इसी तरह फेमिनिन के लिए भी उलाइका है। तो ये एक सबक था आपका इसमें इशारा के मुतालिक। अब मैं आपको कुछ वोकैबुलरी के मुतालिक मैं कुछ वर्ड्स दे रहा हूँ आपको, ताकि वोकैबुलरी भी बढ़े। किसी ज़बान में आपके पास अगर वोकैबुलरी नहीं होती, आप अल्फाज अदा नहीं कर सकते, सिर्फ कवायद याद करना, उसूल याद करना, ये भी काफ़ी नहीं होता। आपने देखा होगा मास्टर्स होते हैं, इंग्लिश में एमए किए होते हैं, मास्टर्स होते हैं, लेकिन वो इंग्लिश ज़बान नहीं बोल सकते। मसला क्या होता है, उनको उसूल का पता होता है। आप जब लिखेंगे, थोड़ी सी भी गलती आएगी, फौरन पकड़ेंगे कि यहाँ पे गलती हुई। लेकिन जब आप इनसे कहेंगे कि हजरत जी आप 3 4 5 मिनट के लिए कुछ इंग्लिश में बात करें, वो इसलिए नहीं कर सकते, उनके पास वोकैबुलरी नहीं है, उनके पास एक्सेंट नहीं है, उनके पास लहजा नहीं है, उनके पास प्रोनाउंसिएशन नहीं है, उनके पास माहौल नहीं है। तो सिर्फ आप उसूल कवायद पे इक्तिफा करके, अरबी आ गई नहीं, साथ साथ मैं कुछ वोकैबुलरी भी दूंगा आपको, अल्फाज भी दूंगा। उन अल्फाज की रोशनी में आप मश्क करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इन उसूलों को अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह अरबी बड़ी जल्दी आ जाएगी। कुरान जो बड़ी नेमत है, और दीन को समझना, जिसको अल्लाह तौफीक दे, बड़ी अल्लाह ताला का की नियामत है, अल्लाह का उसके ऊपर एहसान है, तो वो इसके बगैर नहीं आता। तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ साथ रहें, जल्द ही इंशाल्लाह आपको अरबी की बुनियादी चीज़ें आ जाएंगी। और ये दुरूस इंशाल्लाह हमारे चैनल अल-फलक अकेडमी में भी अपलोड किए जाएंगे। अल-फलक अकेडमी में जैसे हमने अरबी लैंग्वेज कोर्स शुरू किया, इस तरह दूसरे मौज़ूआत पे भी हमारे लेक्चर्स होते हैं। कुरान और हदीस पे भी, दूसरे मौज़ूआत पे भी हमारे लेक्चर्स होते हैं, उमूमी मौज़ूआत। और इंशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, उस पे भी दर्स कुरान की तरतीब बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ये पहला लेक्चर था, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।